Hello students, today I am going to start your new chapter for class 10th, which is third linear equation in two variables. In class 9th you have studied a chapter saying linear equation in two variables. In that you have studied how to find solution of a linear equation, how to draw graph of linear equation. So this year also we are going to learn more on this topic. We are going to learn how to get solution, how to find solutions of linear equation to variable by different methods. If you remember, you have studied that linear equation to variable has infinitely many solutions. ठीक है, उसके बारे में बेसिक बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि इस साल हम पढ़ने क्या वाले हैं. We are going to learn this year how to find solution by graphical method, by cross multiplication method, by elimination method and by substitution method. We have different exercises based on this. This is a very important lesson of algebra. So before going to the topic, I just want to summarize the concept of linear equations in two variables. If you remember, in class 7, 8 we have studied equations of the form ax plus b. We have studied equations of the form ax plus b equal to something. C or ax equal to b, like this you have studied. These are the linear equations in one variable, because variable is here, variable is x and a, b, c are constants. ठीक है. For example, 2x plus 3 equal to 0 or 2x minus 3 equal to 3 or 3x plus 5 equals to 10. These are examples of linear equation in one variable. Obviously, variable is one, that's why we say one variable. Now, why we say this equation as a linear equation? If you remember, in second lesson we have studied the polynomials with degree 1 are known as linear polynomial. The polynomials with degree 1 are known as linear polynomial. So, if I write like this, ax plus b, that's it. It will become a linear polynomial. Now, if I put equal sign and write some other value, c, then this will become a linear equation. मतलब हम लोग equality दिखा रहे हैं. In polynomial, if you remember, only we had this much, but in linear equation we have equal to something. This will become a equation. Now, let us talk about solution of a linear equation. What do you mean by solution of linear equation? I am just writing linear equation, not in one variable or two variable. So keep in mind that solution of a linear equation. So first of all, let us see what is the meaning of solution of linear equation in one variable. Okay, and you all studied how to find the values. I'll take simple example to 3x plus 5 equal to 10. How will get solution of this equation? 3x equal to 10 minus 5, then 3x equals to 5, then x equal to 5 by 3. And we call this as a solution of linear equation. When we say a particular number or value of x which is a solution, हम किसी value को कब उसका solution कहेंगे equation का? When this value of x satisfies the given equation. Now, what is the meaning of satisfy? Satisfy means LHS equal to RHS. If you put x value here, let us see. First of all, let us see by taking LHS. LHS 3x plus 5. Here in LHS we will substitute the value of x, which is 5 upon 3. Let's see what happens. 3 into 5 upon 3 plus 5. You will get 3 cancel, 5 plus 5 10. Now can you see this LHS value is equal to RHS. This LHS value is equal to RHS. That's why we say this is x 5 upon 3 is the solution of this linear equation in one variable. तो सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया. x का वह वैल्यू जिसके वजह से ये जो लीनियर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए. सेटिस्फाई मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान सेम हो जाए. इस पे क्वेश्चंस क्या आ सकता है आपको? चेक वेदर दिस इज सॉल्यूशन और नॉट. ठीक है, ये क्लास 9 में हमने किया था, 8 में किया रहेगा. ठीक. नाउ द टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल के नंबर कितने थे? x. डिग्री 1 थी इसलिए इसको लीनियर कहते हैं. वेरिएबल एक था इसलिए हम इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर इसका वेरिएबल 2 कर लेते हैं,
जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं x plus y equals to 10. What does it mean? Sum of two numbers is 10. इसका मतलब क्या हुआ? x वेरिएबल है मतलब ये भी अननोन है, y भी वेरिएबल मतलब ये भी अननोन है, तो दो वेरिएबल्स का सम 10 है, मतलब दो अननोन क्वांटिटीज का सम 10 है. ओके, सो अब बताइए इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे. अगर मैं कहता हूं मेरे पास x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या आएगा 9, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 plus 9 equal to what 10. So 1,9 एक सॉल्यूशन हो गया. If I take x as 2, y will be 8, x as 3, y will be 7 and so on. मतलब there are infinite number pair of numbers whose sum is 10. ऐसे infinite number of numbers की जोड़ी है जिनका sum क्या होना 10 आता है. ठीक है, तो आपने एक चीज देखी, ये क्या है, दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक, ये क्या था, दिस वाज एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो एक कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग. क्या कंक्लूजन पे आते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन. अगर यहां पे x का वैल्यू हम 1 रखते हैं इस इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. 2 रखते हैं नहीं सेटिस्फाई करेगा. 5/3 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं मिलेगा जिससे हमारा LHS इक्वल टू RHS आ जाए. इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिक. यूनिक मींस वन, ओनली वन. ओके, नाउ इफ आई से हाउ मेनी सॉल्यूशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज. नाउ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. ओके, अब बोलेंगे सर इसका सॉल्यूशन कैसे पता चलता है. अभी आपको बताया मैंने how to find solution of linear equation in one variable. What we will do in class 9, we have already done this. We will assume either value of x or y. हम अपने मन में x या y किसी का वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं. Let us take y is equal to 1. तो यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या आएगा, x plus 1 equals to 10. So x का वैल्यू आएगा आपको 9. तो सॉल्यूशन क्या हो गया भाई, 9,1. हम लोग हमेशा x का वैल्यू पहले लिखते हैं, y का वैल्यू बाद में लिखते हैं. सिमिलरली इफ आई टेक y वैल्यू 2, यू विल गेट 8 एज x वैल्यू. तो ऐसे हम लोग इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. ओके, बट हम इस साल पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. ठीक है, ओके, तो सिस्टम, तो डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा. ऐसे ही लीनियर इक्वेशन जिनकी डिग्री 1, ऐसे इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 हो और वेरिएबल का नंबर्स कितना हो, 2 वेरिएबल्स हो, उन्हीं को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. फॉर एग्जांपल अगर सैंपल करना चाहेंगे तो ax plus by plus c equal to d, या आप लिख सकते हैं ax plus by equals to c. These are the examples of, this is the standard form of linear equation in two variable. इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं. अगर इसी टाइप के अगर हम दो इक्वेशंस एक साथ लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. मतलब क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. दो इक्वेशंस की जोड़ी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. ओके, अब हम सिस्टम का एग्जांपल लिख लेता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल x plus y equal to 7 and x minus y equal to 8. ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया. इन दोनों इक्वेशन को जब साथ में लेंगे तो उसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. ओके, अब इन दोनों को एक साथ लेकर हम सॉल्यूशन निकालना इस साल सीखेंगे. ठीक है, this year we will learn how to find solutions of system of linear equation two variable, or find the solutions of simultaneous linear equation. Simultaneous linear equation किसे कहते हैं, इसी दोनों को साथ में. अकेला रहेगा तो नहीं, दो इक्वेशन साथ करेंगे तो उनको हम कहते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. समझ में आया? इनका सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न 4 मेथड्स दिस ईयर. फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग. ग्राफिकल मेथड, ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग. थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन है क्योंकि बेसिक लेक्चर है. नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1. ओके,
तो फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, सेकेंड मेथड वी आर गोइंग टू लर्न विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. Substitution method. And third method we are going to learn, that is cross multiplication method. Oh, sorry, elimination method, we'll take that first. Elimination method. Elimination method. Fourth method is cross multiplication method. Multiplication. For your kind information, this method is eliminated from board exam this year, but we will learn this also. Okay. What do you mean by graphical method? It seems graphical, so we will draw graph of these two equations and find the solution. मतलब हम इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से सॉल्यूशन मिलेगा. कैसे बनता है आपने पढ़ा होगा, मैं ब्रीफिंग कर रहा हूं शॉर्ट में. सपोज ये x प्लस वाई का ग्राफ है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 का ग्राफ है, और ये दूसरे लाइन का ग्राफ है. दोनों लाइन का ग्राफ क्या होगा? लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन होगी. आपने लास्ट में ड्रॉ किया होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ. आपने देखा होगा कि हर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है. ओके, तो दोनों लाइंस का हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ जो जहां इंटरसेक्ट करता है दैट विल बी व्हाट? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस. समझा? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूं. जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, हम इससे या उससे हम लोग x या y का वैल्यू निकालेंगे. इससे x का वैल्यू क्या आएगा? 7 माइनस वाई, और ये जो वैल्यू आया उसको हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, समझ में आया बात मेरी? x का वैल्यू पहले इक्वेशन से निकाला और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7 माइनस वाई इक्वल टू 8. वी विल गेट माइनस 2y इक्वल्स टू 1. ओके, एंड y इक्वल्स टू माइनस 1/2. दिस वे विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ वन वेरिएबल. और फिर इस सॉल्यूशन को चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रखकर हम दूसरे वेरिएबल को निकालते हैं. इन सब मेथड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम उनका एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ओनली ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है रिस्पेक्टिव जब एक्सरसाइज आएंगे तो हम लोग डीपली बताएंगे. ठीक, तो सबसे पहले सिर्फ ग्राफिकल मेथड का आज ओवरव्यू देखते हैं और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे आपके. I'll take more simple numbers, then it will be easy for us. X plus y equal to 4 and I'll take x minus y equal to 10 suppose. Okay. और जैसे 6. तो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं? सबसे पहले हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? फॉर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लेते हैं इक्वेशन 1. x plus y equals to 4 है. यहां से हम we will convert this equation either in terms of x or in terms of y. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y equals to 4 minus x. अब जो राइट साइड में वेरिएबल आया है, उसके वैल्यूज को हम अज्यूम करेंगे. ठीक है, अपने मन से. एक बार हम x equal to 0 ले लेते हैं. सो y का वैल्यू क्या आएगा? y will be what? 4 minus 0 4. तो फर्स्ट वैल्यू we got 0,4. Now second time हम what will do? We'll take y as 0. ठीक है, डायरेक्टली इसमें भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सेकेंड टाइम we'll take y equal to 0, तो क्या हो जाएगा? x plus 0 equal to 4. So x का वैल्यू क्या आ गया? 4. ठीक है, तो इसका मतलब टेबल बना देंगे इसका हम x y x comma y. We'll draw table of this like this. Now x वैल्यू व्हाट, पहले हमने x का वैल्यू क्या लिया था? 0, y आया 0, सो हम विल राइट लाइक दिस. सॉरी 0 एंड 4, y 4 आया. सेकंड टाइम क्या किया? y का वैल्यू 0 लिया हमने, सॉरी, और x का वैल्यू 4 आया. तो हम लोग को दो कोऑर्डिनेट क्या मिला? 0,4 और 4,0. ठीक है, अब सेकंड वन लेते हैं x minus y equals to 6. Similarly we will solve that also. x minus y equal to 6 लेते हैं. फर्स्ट टाइम टेक x equal to 0, तो व्हाट वी विल गेट? यहां रखो 0 minus y equal to 6, तो minus y equal to 6, so y equal to क्या आएगा? y equal to minus 6. ठीक है, तो पहला वैल्यू क्या आ गया? y equal to minus 6. when I take y as 0, जब हम लोग y को 0 लेते हैं तो क्या आएगा? x minus 0 equal to 6, मतलब x equal to 6.
सो क्या नंबर्स मिल गया, सेम इसी तरह टेबल बनाएंगे। क्या पॉइंट मिल गया आपको 0, -6 एंड सेकेंड पॉइंट क्या मिला 6, 0। ध्यान है रखना आप लोग, पहले x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ओके, तो x का कोऑर्डिनेट 6 था, y का कोऑर्डिनेट 0, x का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट -6। तो ये जो टेबल मिला है किसका, इसी तरह टेबल इसका बनाएंगे। ठीक है, ये टेबल था पहले इक्वेशन का और ये जो टेबल बना है वो है सेकंड इक्वेशन का। दोनों का टेबल सेम तरीके से बनेगा। ओके, देन व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशंस। आई एम नॉट हैविंग ग्राफ पेपर, सो दिस इज रफ figure. I may not give the exact answer. Okay, now let us see how to draw graph of this. We'll take points like here 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that. Here on positive y-axis. This is visible, -6. Okay, now here -1, -2, -3, -4, -5, -6. Okay, now see, we will plot this point 0, 4, 0, 4, x value 0 and y value is 4. We all know that on the y-axis x values क्या होता है 0 होता है, तो 0, 4 this point will lie where, this will lie on the y-axis 0, 4, this will be the point 0, 4. okay, because x का वैल्यू 0 इस लाइन पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 4, 0, y वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 ऑन द x एक्सिस होता है, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। ओके, तो 4, 0 कहां पर आएगा, ये पॉइंट हो गया। देन व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, प्रॉपर्ली स्केल की सहायता से ड्रॉ करेंगे आप लोग। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट आफ्टर ड्रॉइंग दिस लाइन वी विल राइट द नेम ऑफ दिस लाइन x plus y equal to 4 so that we should not get confusion. Now this is second equation, x minus y equal to 6. उसके पॉइंट्स क्या हैं 0, -6, 0, -6, 0, -6, x एक्सिस 0 है पूरा, सॉरी x का वैल्यू 0 है तो मतलब पूरा y एक्सिस 0 है, 0, -6, तो y का वैल्यू कितना है -6, ये पॉइंट यहां पर होगा -6 और 6, 0 मतलब x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 6 यहां पे है, y का वैल्यू 0 पूरी इस लाइन पे होता है, ये हो गया आपका 0,6। ठीक है, देन वी विल ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2। हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, इनसे पास होता हुआ, ये सिर्फ फिगर सो यू अंडरस्टैंड। और आप देखेंगे कि दोनों लाइंस एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है। अगर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनका सोल्यूशन ऑब्टेन नहीं होगा। ओके, उस केस में सोल्यूशन आएगा ही नहीं। हो सकता है कभी लाइन इंटरसेक्ट ना करे तो वहां पे क्या होगा, दिस 2 लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। बट यहाँ पे हमारे केस में क्या है, दोनों लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, इसका कोऑर्डिनेट इसका सॉल्यूशन होगा। चेक करते हैं ये लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन 5 पे और यहाँ पे आएंगे -1, तो 5 और -1 पे इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -1 इसका सॉल्यूशन होगा। सो वी विल से 5, 1 इज सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन को हमेशा इस तरह लिखते हैं। जरा अलजेब्रिकली चेक करते हैं, ये ग्राफिकल मेथड था, अलजेब्रिकली चेक करते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन सही है। इस दोनों वैल्यूज को हम इस क्वेश्चन में रख देंगे। कैसे चेक करते हैं सॉल्यूशन, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू -1 है, किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए। वी विल सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -1। ओके, सो वी गेट आंसर ऑफ LHS 4। LHS का आंसर कितना आया 4। देखो 5 -1 4 सही है, विच इज इक्वल टू RHS। तो अपना आंसर क्या है, करेक्ट है। अंडरस्टूड। हम कैसे चेक करेंगे,
ये जो एक्स वाई का वैल्यू आया है वो हम किसी इक्वेशन में रख देंगे। अगर LHS इक्वल टू RHS आता है तो हमारा सोल्यूशन करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग। सेकंड में रखेंगे देखोगे तो आपको सेम मिलेगा 5 माइनस 1, तो 5 प्लस 1 विच इज 6, सो आवर आंसर इज करेक्ट। दिस इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x या y के पॉइंट्स सब्स्टिट्यूट करके हम x निकालते हैं। एक बार x को 0 लीजिए, एक बार y को, ठीक है, 2 पॉइंट्स मिलेगा। इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन का भी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, दैट इज व्हाट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।